Let us discuss a new chapter, The Adventures of Toto. CBSE Board Class 9. So, have you ever heard of a pet monkey? Anywhere, anybody is having a monkey as a pet? So, if you have seen, you must have seen how it behaves, whether it is docile or it is mischievous. So, let us study about Toto, that how he was actually. So, grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The writer Ruskin Bond, he says that his grandfather had once bought Toto, that monkey, baby monkey, from a Tonga driver. Tonga driver मतलब तांगा चलाने वाला, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, उसी से ले आया था for 5 rupees, 5 रुपए में. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. वो जो तांगे वाला था ना, he used to always keep the monkey tied with a feeding trough. एक छोटा सा कंटेनर जिसके अंदर उसको खाना रख दिया जाता था खाने के लिए, और वो बंदर हमेशा अपने फीडिंग ट्रफ के पास ही रहता था जिसमें उसको खाना खिलाया जाता था. हमेशा बंधा रहता था वो बंदर उसी के साथ, ऐसे ही रखता था वो तांगा वाला. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. And then my grandfather felt sympathetic. He thought that this is not a good place for a baby monkey, and so he bought the monkey so that he could put it as a collection in his zoo. So we have gotten information about the writer's grandfather that he owned a zoo. In that zoo, he had kept many varieties of animals, reptiles. Toto was a pretty monkey. Now we have got the introduction about Toto. Toto is a pretty monkey. बहुत प्यारा सा monkey था. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. और उसकी जो eyebrows थे ना, एकदम set थे. उस eyebrows के नीचे उसकी आंखें एकदम sparkle करती रहती थी, चमकते रहती थी. And his teeth, which were a pearly white. Pearl जानते ही हो, मोती. उसका दांत जो था ना, set of teeth, that was pearly white. मोती की तरह सफेद एकदम चमचमाते हुए दांत. Were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और कभी कभी वो मुस्कुराता था तो उसके सारे पर्ल जैसे दांत दिखते थे एकदम सफेद. खुश होकर मुस्कुराता था, लेकिन उसको तो मुस्कान आती थी इसलिए मुस्कुराता था. लेकिन जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी उस जमाने की, रस्किन बॉन्ड के टाइम का स्टोरी है, बहुत पुराना है. इट वॉज द टाइम व्हेन इंडिया वॉज गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स. So there were many Anglo-Indian women roaming across the city. When they saw that baby monkey Toto smiling and chuckling, showing all his set of teeth, they were frightened. डर जाती थी वो लोग उसका दांत देख करके. Elderly women, जो उसमें बूढ़ी रहती थी, elderly लोग डर जाती थी. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ एकदम रूखे सूखे थे टोटो के. रूखे सूखे ही रहते हैं क्योंकि वो लोग हाथों से ही तो पैर का भी यूज़ करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, बहुत सारा रफ चीज़ पकड़ते हैं, तो हाथ उनका बहुत ही रफ हो जाता है, हैंड. तो टोटो इस तरह से दिखता था. उसके टोटो के जो हाथ थे वो ऐसे दिखते थे जैसे लगता था पिकल्ड हो गया, उसका अचार पड़ गया एकदम, सनबर्न हो गया है. पिकल जब हम लोग करते हैं तो सन में उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, सनबर्न हो गया. Yet his fingers were quick and wicked, but his fingers were very quick and very wicked. उंगलियां उसकी बहुत ही शरारती थी और बहुत ही क्विक, फटाफट चलती थी. And his tail, while adding his good looks, grandfather believed that tail would add to anyone's good looks. और उसकी पूंछ जो थी ना, वो उसके ब्यूटी में और ऐड करती थी, ज़्यादा ब्यूटीफुल उसको बना देती थी. And my grandfather also thought like that the tail adds more beauty to an animal. Also served as a third hand. और उसके दो हाथ तो होते ही थे, टोटो के दो हाथ तो थे ही. दो हाथ बोलो या पैर भी बोल सकते हो, पैर का भी इस्तेमाल करते हैं लोग हाथ से ही. उसके साथ साथ उसका थर्ड हैंड होता था क्या, उसका टेल. पूंछ से भी वो लोग पकड़ लेते हैं. उनकी पूंछ का जो बोन्स होता है काफ़ी क्विक होता है, और जैसे हाथों से यूज़ करते हैं वो लोग, कोई ट्री का ब्रांच वगैरह पकड़ते हैं, पूंछ से भी पकड़ लेते हैं, पूंछ से भी लटक जाते हैं. He could use it to hang from a branch. पूंछ का यूज़ करता था वो ब्रांच से लटकने के लिए. And it was capable of scooping up
any delicacy that might be out of reach of his hands. कभी कभी तो वो अपने पूंछ का यूज ऐसे ऐसे खाने की चीज को पकड़ने में भी, कैच होल्ड करने में भी यूज कर लेता था जहां उसके हाथ नहीं पहुंच सकते। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बंदरों की पूंछ बहुत लंबी होती है, तो जहां उनका हाथ नहीं आता था वहां पे अपनी पूंछ से वो पकड़ लेता था। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. मेरी दादी बहुत ही इरिटेट हो जाती थी whenever grandfather brought any new animal, any new bird. My grandmother was the first one to react. हमेशा नाराज हो जाती थी, झगड़ा करने लगती थी। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particular good mood. So we shared a secret among ourselves. My grandfather, me, and everyone in the family except grandmother. We all shared the secret that Toto was inside the house, but we didn't reveal the secret to grandmother. We had kept Toto separately, and we had decided not to disclose the arrival of the newcomer till grandmother was in good mood. जब तक वो अच्छे मूड में नहीं होगी हम लोग बताएंगे कि घर में एक नया मेहमान भी आया है। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. हम लोगों ने उसको एक छोटे से अलमारी जैसे जगह में रख दिया, हमारे बेडरूम में था वो, वहीं पे छिपा के रख दिया। Where he was tied securely, और वहीं पे उसको बहुत ही सेफ तरीके से टाई कर दिया गया, बांध दिया गया। और so we thought, हम लोग ऐसा सोचते थे कि हम लोगों ने बांध दिया है और वो सेफ है, सिक्योर है। ऐसा था नहीं। To a peg fastened into the wall. किस चीज से बांधा था? पेग से। पेग क्या होता है? तो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खूंटी या खूंटा। जैसे गाय और गोरू को बांधने के लिए जमीन में लकड़ी का खूंटा और उसी में गाय को बांध देते हैं। तो बंदर को कहाँ बांध के रखा था? दीवार पे। दीवार पे एक पेग लगा दिया था, उसी में बांध के रखा था। A few hours later, थोड़ी समय के बाद, कुछ घंटे के बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब मेरे दादाजी और मैं दोनों मिलके आए टोटो को रिलीज करने के लिए, जहाँ पे जिस क्लोसेट में रखा हुआ था वहाँ से रिलीज करने आए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. जब आए हम लोग देखे तो देखते हैं क्या, पूरा रूम का शेप बिगड़ गया है, रूम का जो आउटलुक था वो चेंज हो गया है। दादाजी ने दीवार को कवर करने के लिए एक ऑर्नामेंटल पेपर लगाया था, काफ़ी चूजन पेपर था, वो चूज करके उन्होंने लगाया था, डेकोरेटिव पेपर था, पेपर से सजा के रखा था दीवार को। वो दीवार अब नेकेड है। नेकेड है बोलने का मतलब, नो प्लास्टर ऑफ पेरिस, नो सीमेंट प्लास्टर, ओनली ब्रिक्स कुड बी सीन। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. क्या देखते हैं हम लोग कि वो जो पेग था ना दीवार में लगा हुआ जिससे टोटो को बांध के रखे थे, उसने पेग को रेंच कर करके, रेंच करना मतलब ट्विस्ट करके, टर्न कर करके उसको उखाड़ दिया पूरा दीवार से। जब उसको बाहर उखाड़ा तो उसके साथ साथ प्लास्टर भी उखड़ के आ गया, ईंट दिख रहा है अंदर का, ईंट। और उसी क्लोजेट के अंदर मेरा एक ब्लेजर भी था, स्कूल का ब्लेजर। उसका क्या हाल है जानते हो? श्रेड्स, पूरा फाड़ दिया है, दांत से काट काट के, नाखून से मार मार के उसको पूरा फाड़ दिया, चीर दिया। I wondered what grandmother would say. मैं सोचने लगा था कि now this cannot be hidden anymore from grandmother. She would immediately come to know. यही सोच रहा था मैं कि when she will come to know, what will be her reaction? How will she react? But grandfather didn't worry. लेकिन मेरे दादाजी को कोई चिंता नहीं था. He was not worried about this. He seemed pleased with Toto's performance. उनको तो जानवरों से प्यार था ना, तो it was quite a pleasant experience for my grandfather. उनको तो अच्छा लग रहा था कि अरे वाह, जिसको मैं लेके आया हूँ वो कितना बदमाश है, कितना एक्टिव है ना। बट ग्रैंडफादर, सॉरी, ही इज क्लेवर। ग्रैंडफादर ने बोला कितना क्लेवर है देखो टोटो। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. उन्होंने बोला शाबाशी देते हुए टोटो को, बेटा टोटो को अगर टाइम मिल गया ना तो टोटो जानते हो क्या करेगा? तुम्हारा ब्लेजर का जो
वो फटा हुआ टुकड़ा है कपड़े का, सारे कपड़े को जोड़ के वो एक रस्सी बना देगा, रोप बनाएगा, और वही रस्सी का यूज करके वो विंडो से निकल के भाग जाएगा। कितना स्मार्ट है। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अभी भी सीक्रेट ही था टोटो, घर में पता नहीं चला था दादी को। दादाजी ने क्या किया, टोटो को वहां से शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उसको भेज दिया नौकरों के क्वार्टर्स में। नौकरों का जहाँ क्वार्टर्स था वहाँ पे एक पिंजरे के अंदर टोटो को बंद करके रखा गया। वहाँ टोटो बाकी सारे जानवरों के साथ काफ़ी सोशल होकर रह रहा था, काफ़ी सोशल, बहुत सामाजिक जीव था वो, है ना, भाईचारा था। कौन कौन से जानवर थे वहाँ पे? अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, अ टेम स्क्विरल, पालतू स्क्विरल भी था वहाँ पे, गिलहरी, एंड फॉर वाइल माई पेट गोट, और थोड़े से समय के लिए वहाँ मेहमान बन के मेरी बकरी भी आई थी, मेरी पालतू बकरी। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. लेकिन एक प्रॉब्लम था टोटो में, he did not let anyone sleep at night. बंदर है ना, बंदरगिरी करता था, सोने नहीं देता था किसी को, रात को भी सोने नहीं देता था। इसीलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट वीक में हम सहारनपुर जा रहे हैं, नेक्स्ट डे में सहारनपुर जा रहे हैं, तो अपने साथ टोटो को ले जाएंगे। सहारनपुर क्यों जा रहे थे वो? ही वॉज गोइंग टू कलेक्ट हिज पेंशन, पेंशन लाने जा रहे थे अपना, दादाजी अपना पेंशन लाने जा रहे थे, इसलिए सोचे कि टोटो को लेके जाएंगे, क्योंकि किसी को सोने नहीं दे रहा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। हर बार, कई बार मैं दादाजी के साथ सहारनपुर गया था ट्रिप में, उनके साथ मैं गया था पेंशन लाने के लिए। इस बार नहीं जा पाया अनलकीली, लेकिन इस बार नहीं गया तो फिर रास्ते में क्या क्या हुआ इसके बारे में दादाजी ने मुझे आके डिटेल्स में बताया कि क्या क्या मुझको झेलना पड़ा इस टोटो की वजह से। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. दादाजी उसको कैसे ले गए सहारनपुर? एक बड़ा सा कैनवस का किट बैग था। कैनवस मटेरियल जब समझते हो ना, काफ़ी रफ होता है और मोटा होता है, कॉटन का बना हुआ, वो कैनवस होता है। जिसका शू होता है कैनवस शूज़, या जिसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, काफ़ी मोटा खुरदरा होता है। तो उसी मटेरियल का एक किट बैग था, बड़ा सा बैग, वो टोटो का नया घर हुआ। उस बैग के अंदर पहले स्ट्रॉ बिछा दिया गया, बिचाली वगैरह, घास फूस बॉटम पे। When the bag was closed, there was no escape. बैग को बंद करने के बाद टोटो भाग नहीं सकता था। टोटो could not get his hands through the opening. अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था वो। उसमें ओपनिंग भी था, होल भी बना हुआ था बैग में, लेकिन उस होल से बाहर हाथ नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through. और वो कैनवस इतना स्ट्रांग था कि उसको काट के भी वो फाड़ नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll out on the floor or occasionally jump into the air. अच्छा, अगर वो कोशिश करेगा उसको फाड़ने का, चीरने का, उस कैनवस बैग को, तो रिजल्ट क्या होगा? बैग नीचे गिर जाएगा, रोल डाउन होने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा बॉल की तरह से, या कभी कभी ऑकेजनली जंप भी हो जाता था, थोड़ा सा, थोड़ी दूर तक एयर में, ग्राउंड से अबव। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. और जब ऐसा होता था ना, कभी कभी उनका बैग अपने आप से लुढ़कने लगता था या एयर में थोड़ा जंप हो गया, तो कई लोग क्यूरियस हो जाते थे, अरे ये बैग अपने आप कूद रहा है, अपने आप गोल गोल रोल कर रहा है, क्या है इस बैग के अंदर? सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता था देखने के लिए कि क्या है आखिर इसके अंदर। Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अच्छा, टोटो अभी तक तो पूरा बैग के अंदर ही बंद था, बैग के अंदर ही पूरा बंद था, बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन जब सहारनपुर आ गया, वहाँ मेरे दादाजी जब टिकट कलेक्टर को, टीटी को, जब टिकट दिखा रहे थे ना, रेलवे टर्नस्टाइल के पास, टर्नस्टाइल क्या होता है तुमने देखा होगा किसी पार्क वगैरह में, कुछ ऐसा
एंट्रेंस गेट बना रहता है सर्कुलर, उसमें एक आदमी एंट्री कर सकता है, टर्न स्टाइल बोलते हैं उसको, ऐसे कट 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 करके घूमता है, टर्न स्टाइल। वहां पे टोटो क्या किया ना, अपना हेड बाहर निकाल दिया किसी तरह से, somehow he managed to take his head out and he gave a grin to the ticket collector, GRIN, grin, grin का मतलब क्या होता है, स्माइल, ठीक है, दांत निकाल के स्माइल भी दिखलाया, किसको, टिकट कलेक्टर को।